gentleman benefited to the tune of approximately 45,000 crore rupees. This is the truth. Now the Prime Minister must explain, and he must answer in this House, whether the Cabinet Committee for Security took this decision or not. The Prime Minister must also explain why this contract was taken away from HAL and the youngsters of Karnataka and given to a businessman who had a debt of 35,000 crores and has never ever built an aeroplane in his life. Now these are the things that the Prime Minister of India must explain. He must explain why a businessman has been favored. I know, I can see he's smiling, but there is a touch of nervousness in the gentleman. There is a touch of nervousness in the gentleman, and he is looking away from me. I can understand that. And now he cannot look into my eyes. He cannot look into my eyes. I can see that. How can it be? Because the Prime Minister has not been truthful. That is the fact. Now, let me move on. Let me go down the list. The idea of demonetization was to damage and reduce. 1 minute. What point of order you have? Madam, very unfortunate. I'm quoting the rule. I'm quoting the rule. Madam, I'm speaking under Rule 3. I am drawing your attention to Rule 353. 353. The 353 very specifically says, Madam, no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has been given adequate advance notice to the Speaker and also to the Minister concerned, that includes Prime Minister also, so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply, provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making such allegation if the Speaker is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or no public interest is served by making such allegation. Madam, what Sri Rahul Gandhi is doing is he is throwing the rules of the procedure to four winds and speaking. He is speaking everything baseless, without any substance, far from the truth. There is no document or anything to support frivolous charges. I know the entire family doesn't care for the Constitution. They don't care for the rules of the procedure also. They don't care for the Parliament also. पूरे देश ने अभी देखा है, मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। ये सच्चाई है। कभी उधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, मगर सच्चाई है, सच्चाई है। चलिए आप जितना भी चलाएं, वो क्षण देश ने देख लिया है। देश को समझ आ गई है बात। चौकीदार नहीं है, भागीदार है। अब चलते हैं फॉरेन पॉलिसी पे। थोड़ा फॉरेन पॉलिसी के बारे में बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने चाइना के राष्ट्रपति के साथ गुजरात में नदी के किनारे झूला झूला था। उसके बाद
चाइना के 1000 सैनिक हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर थे। उसके बाद चाइना का राष्ट्रपति वापस गया। चाइना का राष्ट्रपति वापस जाता है और अपनी सेना को डोकलाम में डालता है। हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति दिखाई। ठहरिए। हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति दिखाई और वो चाइना के सामने खड़े हुए। ये भी मानते हैं। मगर उसी के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी चाइना जाते हैं और बिना एजेंडा के वुहान में चाइना के सामने कहते हैं कि बिना एजेंडा बात होगी, डोकलाम को हम यहां नहीं उठाएंगे। ये चाइना का एजेंडा था और चाइना के सामने जो हमारे सैनिक खड़े हुए वो काम हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर पाए और सैनिकों का प्रधानमंत्री ने धोखा दिया। ये सच्चाई है, इसको बदला नहीं जा सकता है। किसान कहता है प्रधानमंत्री जी आपने 2.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर 20-25 उद्योगपतियों का माफ किया, कर्जा माफ किया। प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान का किसान कहता है माफ आपने उनका किया, हाथ जोड़ के आपसे कहता है हमारा भी थोड़ा सा माफ कर दीजिए। और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं नहीं 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 नहीं, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, सबसे बड़े उद्योगपतियों का होगा, किसान का नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों में शक्ति नहीं है, तुम लोगों में दम नहीं है, तुम लोग सूट नहीं पहनते, बूट नहीं पहनते। किसान का बेटा स्कूटर मोटरसाइकिल चलाता है, पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम नीचे गिर रहे हैं, हिंदुस्तान में ऊपर, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने मित्रों के जेब में पैसा डालना चाहते हैं। प्लीज बैठिए तो सही। आप भी सुनिए, बैठिए। किसान कहता है मैंने प्रधानमंत्री को अपना वोट दिया। देखिए अब बैठिए, प्लीज एवरीबडी। राहुल जी प्लीज बैठिए, आप बैठिए ना प्लीज। एक बात आप अटोले जी, एक बात मैं आप सबसे भी निवेदन कर रही हूँ, बोलने वालों को भी मैंने हमेशा निवेदन किया है कि बोलते समय कोई ऐसी बात भी हम नहीं बोले, या आम सभा भी तो नहीं है, या जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स यस आप रख सकते हो, बिल्कुल रखो। शब्द भी ऐसे यूज होना चाहिए यहाँ बोलते समय कि चाहे वो किसान के लिए बोलो, चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी और इसलिए ये आरोप भी जो लगाओ, अगर हमारे पास है ऐसा पुरावा जरूर लगा सकते हैं। सभी लोग कृपा करके थोड़ा संयम रखें और भाषा भी ठीक रखें। मैं इसका ऐसी बात नहीं आई है हमारा पास भी है, हमारा पास भी प्लीज क्या होगा? क्षमा करिए, तो हर बार रूल्स का उल्लंघन करेंगे, कोई सबूत नहीं है। डरो मत, एक मिनट, डरो मत। आप
भी बैठिए, मैंने कहा करो मत, करो मत, करो मत, जवाब करो मत, करो मत। क्या हो रहा है? हाँ ठीक है ना, तो जवाब भी तो आएगा। बैठिए आप प्लीज। उसके बाद वो जो कह रहे हैं इसका कोई तथ्य है, सबूत है, वो सदन के सामने पेश करना चाहिए, नहीं तो ये अनाप शनाप बोलने के लिए वो क्षमा याचना करना चाहिए। एक बात आप क्षमा याचना प्लीज प्लीज प्लीज। मैडम ये क्या शुरुआत है मैडम? मैडम ये क्या शुरुआत है? मैडम ये क्या मालूम नहीं है मिनिस्टर उठा रहा है। मैडम एक साथ का उदाहरण हो गया। प्लीज प्लीज बैठिए। मैडम ये क्या मैडम? मैडम ये क्या? मैडम ये क्या है मैडम? ये कहाँ का उदाहरण है मैडम? मैं किसी की सुनने की स्थिति में ही नहीं हूँ। किसी पे मैं मैडम ये क्या है मैडम? ये कहाँ का उदाहरण है? संसदीय कार्य मंत्री उठ गए, मुख्य सचेतक उठ गए। प्लीज अब देखिए मैडम कितने चिढ़ गए, कितने चिढ़ गए। प्लीज प्लीज प्लीज। House stands adjourned to meet again at 1:45.